Hello students, welcome back in online teaching class NCERT course 11th standard biology chapter number 2 biological classification. I explained you two kingdom of R.H. Whitaker, the kingdom Monera, the kingdom Protista. Now let's we start the third kingdom by given the R.H. Whitaker. It is kingdom fungi. Let's we start it. Okay, kingdom fungi. Okay, what are fungi? When up to 2 days you keep bread or chapati, then after 2 days you observe the white color spores structure there. It is fungi. Okay, and fungi are many kinds of fungi. Okay, some fungi are useful, human welfare, and some fungi are harmful. Okay, so useful are yeast and molds. Okay, now let's we start the characteristics of fungi. Fungi consist a unique kingdom heterotrophic organism. Okay, all are heterotrophic. They are not autotrophs. They show a great diversity in morphological and habitat. And what I said you, when you keep some days like did your chapati or bread, then you can observe the white color spores. All these are the fungus, and most of fungus are totally 80% fungus are parasites. Okay, some are saprophytic, some are parasitics. Like this, many kinds of fungus are found in our atmosphere. Okay, some occurs the diseases in plants, animals, and human, and some are human welfare. Okay, and everywhere we can see the fungus, and most of the moist area. Okay, now let's characteristics of fungus. Why we keep the foods in refrigerator? Because we want to prevent the food from the bacterial and fungal infection. That's why. Okay, it means in warm atmosphere and lower atmosphere, the fungus and bacteria can't grow. Okay, so we preserve our food, maybe to warm it, boil it, or maybe to keep it in refrigerator. Okay, so what is fungus? All fungus are unicellular. Okay, means unicellular means they have only one cell structure. And there are, what I said you, that many types of fungus, and the exception of yeast, which are unicellular fungi, filamental. Their bodies have long cylinder thread like structure and it is called hyphae. ओके, yeast के सिवाय जितनी भी फंगस होती है उन सब की बॉडी जो होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी से बनी हुई होती है. हाइफी जो होता है माइसिलम होता है. ठीक है, ये नेटवर्क होता है माइसिलम का. क्योंकि ये यूनिसेलुलर होती है, अपने नेकेड आँख से नहीं देख सकते, तो ये कॉलोनी में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना करके इस तरह से ग्रुप्स के अंदर रहती है. और इसके अगर इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म, क्योंकि यूनिसेलुलर होती है, तो क्या होगा, जो वन सेल के जो ऑर्गेनिल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वही इसके अंदर दिखाई देंगे. और इसके अंदर सेप्टी और क्रॉस वॉल्स होती है हाइफिन के यहाँ पे. ठीक है, और सेल वॉल जो होती है फंजाई की, वो डिकम्पोज होती है. और फंजाई जो होती है कितनी टाइप्स की होती है? मोस्ट ऑफ 4 टाइप्स की फंजाई होती है. मैंने बताया था इनकी हैबिट के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया गया है. कुछ की हैबिट होती है सेप्रोफाइट्स, कुछ होती है पैरासाइट्स, कुछ होती है सिम्बायोटिक्स, और कुछ होती है माइकोराइजा. ठीक है, तो फर्स्ट है व्हाट आर सेप्रोफाइटिक्स. सेप्रोफाइटिक्स क्या होती है? जो डेड और डिकेड मटेरियल के ऊपर रह करके वहीं से अपने फूड को एब्जॉर्व करती है और उस डेड मटेरियल को डिकेड करके डिकम्पोज कर देती है. वह सभी फंगी जो होती है वह सेप्रोफाइट्स होती है. एंड पैरासाइट्स विच डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स और अदर प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड. ओके, फूड के लिए जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहती है वहीं से अपने फूड को एब्जॉर्व करती है, वो पैरासाइट. ठीक है, अब सिम्बायोट्स मीन्स जो एसोसिएशंस करके किसी भी ऑर्गेनिजम्स के साथ में फ्रेंडशिप करके रहती है कि इससे उसको भी फ़ायदा हो और दूसरे को भी फ़ायदा हो. पैरासाइट में तो क्या होता है, केवल यही उसका फूड लेती रहती है, दूसरे को तो लॉस होता है. लेकिन सिम्बायोटिक में ये खुद भी उसको प्रॉफिट देती है, इससे उसको जिसके पास में रहती है उससे भी प्रॉफिट होता है, और जो इसके साथ में रहता है उसको भी प्रॉफिट और इसको भी प्रॉफिट. दोनों मिलकर के एसोसिएशंस के साथ में
प्रॉफिटेबल लाइफ साइकिल सर्वाइव करते हैं, वो कहलाता है सिम्बायोटिक्स। और उसका एग्जाम्पल होता है लाइचेन। ओके, जो एल्गी और फंगी का दोनों का कॉम्बिनेशंस होता है, यह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। माइकोराइजा जो बड़े बड़े साइकस और पाइनस जिम्नोस्पर्म ट्रीज होते हैं, उनके रूट में यह कौन सी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की तरह से एसोसिएट होती है, लेकिन उसकी रूट जो होती है उसके साथ में वह उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोवाइड करवाती है। साइकस और पाइनस जो जिम्नोस्पर्म लार्ज ट्रीज होते हैं, जो हिली रीजन्स में पाए जाते हैं, तो इससे उनकी ग्रोथ को बढ़ाने में इसका एम रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में। उनका यह एसोसिएशन कहलाता है माइकोराइजा। अंडरस्टैंड। फंजाई की सेलुलर बॉडीज़ किस तरह की है और यह प्लांट एनिमल्स के लिए किस तरह से यूज़फुल है। यीस्ट क्या है, मोल्ड क्या है, दोनों ही फंगस। और जो हमारी जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स वगैरह बनती है, पेनिसिलियम्स वगैरह, वो सभी भी फंगस से बनती है। और 4 टाइप का इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक और माइकोराइजा। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। फंजाई के अंदर अब इसका रेप्रोडक्शन, ठीक है, तो रेप्रोडक्शन सेक्शुअल और एसेक्शुअल दोनों टाइप का करती है। अगर इसके अंदर क्या होता है, एसेक्शुअल भी लोअर टाइप का होता है, सेक्शुअल भी लोअर टाइप का, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या होती है, यूनिसेलुलर। एक तो इसमें अगर फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट के अंदर, तो वह इसका रेप्रोडक्शन कहलाता है प्लाज्मोगेमी। ओके, सिनगेमी जो होता है वो हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में होता है। जो लोअर होते हैं फंजाई एल्गी, तो इनके अंदर प्लाज्मोगेमी होता है। सेल के अंदर एक ऑर्गेनील होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साइड में जो फ्लूइड होता है वह कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। तो उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर इसके 2 गैमिट्स होते हैं। एक तो होता है नॉन मोटाइल जो होता है वो फीमेल, एक होता है मोटाइल वो मेल गैमिट। दोनों जब उसके न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, जो उनका प्रोटोप्लाज्म होता है वह फ्यूज़न होकर के इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, तो वह फ्यूज़न वाला रिप्रोडक्शन इसका प्लाज्मोगेमी कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कैरियोगेमी। जब इसके सेल्स के अंदर 2 न्यूक्लियाई मिलते हैं, एक फंगी के सेल्स का न्यूक्लियाई, दूसरी सेल्स का न्यूक्लियाई, दोनों मिलकर के फ्यूज़न करके एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो यह इसका रिप्रोडक्शन का टाइप कहलाता है कैरियोगेमी। ओके, और मियोसिस जो होता है वह जाइगोट फॉर्मेशंस को यह इंड्यूस करता है, हैप्लॉइड स्पोर्स उसके अंदर बनते हैं। ओके, ये सारे आप जब डिटेल में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे वर्ड्स आपको टर्म समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में यही तक है कि व्हाट इज़ प्लाज्मोगेमी, व्हाट इज़ कैरियोगेमी एंड व्हाट इज़ मियोसिस टू प्रोड्यूस द जाइगोट। तो बस यहीं तक आप अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, तो इसके अंदर मैंने बताया कि क्या होता है फंजाई के अंदर। इसके अंदर दोनों टाइप के रिप्रोडक्शंस होते हैं, मेनली स्पोर्स के थ्रू होते हैं, जो कोनिडिया, स्पोरगोलियम्स या जू स्पोर्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल पेनिसिलियम, और कुछ ऊ स्पोर, एस्कोपोर्स, बेसिडोस्पोर्स भी बनाते हैं। और इसके अंदर सेक्शुअल और एसेक्शुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शंस होता है। अगर प्रोटोप्लाज्म के बीच में होता है तो प्लाज्मोगेमी, और कैरियोगेमी जब 2 न्यूक्लियस के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन 2 ऑर्गेनिजम्स कंपलसरी है, और ये किस तरह का बताया हुआ है, लोअर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बताया हुआ है। और अगर ए सेक्शुअल होता है तो किससे होता है, ओनली स्पोर्स से। ठीक है, जू स्पोर्स, और ये उसके फंगस के ऊपर जो स्पोर आते हैं ना, वही अलग होकर के खुद एक अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये ऊपर वाला जो बताया, ये वाला, ये स्पोर्स वाला, ये सब कौन सा, ए सेक्शुअल, और ये वाला कौन सा था, सेक्शुअल, जिसके अंदर 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें सिंगल 1 पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह का रिप्रोडक्शंस भी इसमें बताया हुआ है कि फंगस जो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करती है, तो 2 हैप्लॉइड हाइफाई जो होती है उनकी मैटिंग होती है। ठीक है, साथ में फ्यूज़ हो जाते हैं, और फ्यूज़न ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल जो होता है वह डिप्लॉइड सेल्स को बना लेता है। ओके, इसके 2 गैमेट जो होंगे ना, N+N, दोनों मिलकर 2N बना लिया, तो वह N जो था वह हैप्लॉइड था, और 2N बना के हो गया डिप्लॉइड। तो यह कौन सा हो गया, लोअर टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। और इसके अंदर कभी कभी 2 न्यूक्लियस कंडीशंस भी आती है, जैसे कैरियोगेमी में बताई थी ना, तो उस तरह की, तो इस तरह की कंडीशन डाइकैरियोन भी कहलाती है। ठीक है, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस मिल गए तो डाइकैरियोन। इस तरह से इसके अंदर रिप्रोडक्शंस भी दोनों टाइप के पाए जाते हैं। और इसकी मॉर्फोलॉजी जो होती है, माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज,
और बेसिक डिवीज़न इसी के बेस पर इसका होता है, ठीक है। तो ये सारे जो नीचे कैरेक्टर दिए थे ना, ये माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, इसके अकॉर्डिंग फंजाई को इसके बहुत सारे किंगडम्स के अंदर क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट क्लास है इसकी माइकोसाइट्स, ओके। फाइकोसाइट्स इसकी फर्स्ट क्लास है। फंजाई को इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बहुत सारी क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें इसकी फर्स्ट क्लास आती है कौन सी, फाइकोसाइट्स। ये देखिए यहाँ पे जो फंजी के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिए हुए हैं माइक्रोस्कोप्स के अंदर यहाँ पे ऑब्जर्व करके, जिसके अंदर ये वाला दिख रहा है आपको, ये म्यूकर है, ठीक है, फंजाई का एग्जाम्पल है। और यह एस्परजिलस है और यह एगेरिकस है। ये सब के सब जो है स्पेसिमेंट्स के रूप में प्रिजर्व करके आपकी बायोलैब में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये एगेरस जो है यह मशरूम कहलाती है। ये एस्परजिलस जो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन्स को बनाने के काम में आती है। ये म्यूकर, ठीक है, जो अपन ब्रेड वगैरह के ऊपर देखते हैं, वाइट फंगस, ये सब के सब आपके स्पेसिमेंट्स के रूप में प्रिजर्व किए हुए आपको बायोलैब में भी देखने को मिलेगी। अब मैंने आपको बताया था अभी फंजाई जो होती है इसके स्ट्रक्चर की और इसकी हैबिट के अकॉर्डिंग मैनी क्लासेस में डिवाइड की गई है, जिसमें फर्स्ट क्लास है इसका फाइकोमाइसीटीज, ओके। ये सब के सब एक्वेटिक हैबिट्स की होती है और डिकाइड, और उसको डिकाइड मतलब डेड फूड के ऊपर रह करके उस फूड को एब्जॉर्ब करती है। इसके अंदर एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसके डिटेल में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। फिर आती है एस्कोमाइसीटीज, सेकंड क्लास, ओके। फिर आती है थर्ड क्लास बेसिडोमाइसीटीज, फोर्थ क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से फंजाई को उसके फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, ड्यूटेरोमाइसीटीज, बेसिडोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज एंड फाइकोमाइसीटीज, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो यहाँ तक आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिर मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट